Good morning students, welcome to all of you. Class 10, subject English and topic is formal letters, letters of inquiry. In the previous videos, I taught you and made things clear to you about formal letters. You know formal letters are of four types. Number one, complaint letters. Number two, letters of inquiry. Number three, placing orders. And fourth one is letters to the editors. In the previous three videos, I taught you and made things clear to you how to write complaint letters. We took three different examples, we solved the examples, and I hope that you have clearly understood that how to write a complaint letter. Dear students, I sent you a PDF also, and in PDF I have written some other complaint letters. I hope that you have written those letters in your fair notebook, and if you remember, I handed over some homework to you. I sent 4 letters for your practice which were unsolved, and I hope that you have practiced those letters at your home. However, if you felt any difficulty anywhere to write those letters, you may ask me without any hesitation. Today, we learn how to write letters of inquiry. First of all, it's very necessary to understand that what is the situation in which letter of inquiry is written. सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि letters of inquiry हम लिखते कब हैं, ये क्यों लिखे जाते हैं. Dear students, here I would like to make things clear to you through some examples. Suppose you want to pursue a course from an institute. Then you need to inquire about the course, and you need to ask informations such as eligibility for the course, duration of the course, fee structure, mode of applying, etc. And in this situation, you need to write a letter to the director of the institute. Similarly, suppose your brothers or sisters' marriage has been fixed, and your family wants to organize a function in a hotel. Then you need to inquire about something from the hotel. You need to ask the information such as catering cost per head, decoration charges, service charges, mode of payment, etc. So in this situation, you need to write a letter of inquiry to the manager of the hotel. So there are so many other situations also, dear students, in which you need or you feel to write a letter of inquiry. In a whole, we can say that when we need or when we feel to ask something about anything, something about the matter, we need to ask the information about any matter, then we need to write a letter of inquiry. Here, let us take an example of letter of inquiry, and through that example, I think that you will be able to understand very clearly that how to write a letter of inquiry. So let us take an example. Example is, you are Rajan Parma oblique Rajni Verma of 216 PH Road, Sonipat.
the student of class 10. You are interested in pursuing a course in visual communication. You have seen the advertisement issued by Global Institute of Communication. New Delhi. Write a letter to the director asking the information about the course in about 100 to 150 words. This is the example, dear students. Let us understand. You are Rajan Verma or Rajni Verma. आपका नाम या तो राजन वर्मा है या रजनी वर्मा है. And this is your address of 216 PH Road, Sonipat. A student of class 10. आप class 10 के student हो. You are interested in pursuing a course in visual communication. आप visual communication में एक course करने के लिए interested हो. You have seen the advertisement. आपने एक advertisement देखा issued by, जो कि issue किया गया था किसके द्वारा? Global Institute of Communication, New Delhi. Global Institute of Communication, New Delhi के द्वारा. राइट अ लेटर, एक लेटर लिखिए टू द डायरेक्टर के लिए आस्किंग द इंफॉर्मेशन, जिसमें इंफॉर्मेशन मांगी गई हो अबाउट द कोर्स, उस कोर्स के बारे में, इन अबाउट 100 to 150 words. As in the previous videos, I have already told you, dear students, and listen attentively once again, that this is very important question because this question will carry 8 marks in the board examination. Let us start to write the answer. Yes, no problem, dear students. Listen very attentively. The format is same whether you write a complaint letter or you write a letter of inquiry. There is no change or no difference in the format of the letter. First of all, you know that at the top and in the left hand corner, sender's address is written. जैसा कि आपको बताया था कि सबसे पहले शुरुआत में लेफ्ट हैंड कॉर्नर में सेंडर का एड्रेस लिखा जाता है. In each question, you will be given 2 addresses. हर एक क्वेश्चन में आपको 2 एड्रेसेस दिए हुए होंगे. एज यू कैन सी दिस क्वेश्चन ऑल्सो, यू कैन सी ओवर हियर. यहाँ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में भी 2 एड्रेसेस दिए हुए हैं. 216 PH Road, सोनीपत एंड Global Institute of Communication, New Delhi. There are 2 addresses in this question. So first of all, it's very necessary to understand and necessary to identify that which is sender's address and which one is address of the address. You know who is sender in this letter? इस लेटर में सेंडर कौन है, लेटर को लिखने वाला कौन है, लेटर को भेजने वाला कौन है, या तो राजन वर्मा है या रजनी वर्मा है. और इस सेंडर का एड्रेस कौन सा है? 216 PH Road, Sonipat. So it's clear that 216 PH Road, Sonipat is sender's address. इसे लिख लेते हैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड कॉर्नर से.
216 PH Road, Sony, सेंटर एड्रेस। आफ्टर दैट while गिविंग अ स्लाइट स्पेस, थोड़ा सा स्पेस देकर के डेट इज रीडर, डेट लिखी जाती है और डेट उस दिन की ही लिखते हैं जिस दिन लेटर लिखा जाता है। टुडे इज 1 जुलाई, सो डेट विल बी रिटन 1 जुलाई 2020, थोड़ा सा स्पेस देकर के। फर्स्ट जुलाई 2020। डेट लिखने के बाद लिखा जाता है डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन मीन्स द नेम, द पोस्ट ऑफ द पर्सन हु यू आर राइटिंग अ लेटर, उस आदमी की पोस्ट, जिस आदमी के लिए आप लेटर लिख रहे हैं। हियर आप लेटर किसके लिए लिख रहे हैं? राइट अ लेटर टू द डायरेक्टर, द डायरेक्टर इसमें डेजिग्नेशन है। थोड़ा सा स्पेस देकर लिखा जाता है द डायरेक्टर, और डेजिग्नेशन से ही टच करते हैं एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। As you know that it's clear 216 PH Road, Sonipat is sender's address, and it's obviously clear that Global Institute of Communication, New Delhi is the address of the addressee. So this address will be written here. Global Institute of Communication, New Delhi. Clear? After that, while giving a slight space, थोड़ा सा स्पेस देने के बाद सब्जेक्ट इज रिटन, सब्जेक्ट लिखा जाता है। हम क्या चीज़ लिखना चाहते हैं लेटर में? हम इंक्वायरी करना चाहते हैं इस चीज़ के बारे में, एक कोर्स के बारे में, जो कोर्स कौन सा है? विजुअल कम्युनिकेशन के संबंध में है। तो वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं इंक्वायरी अबाउट द कोर्स इन विजुअल कम्युनिकेशन। दिस इज द सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है इंक्वायरी अबाउट द कोर्स इन विजुअल कम्युनिकेशन। आफ्टर दैट सैल्यूटेशन इज रिटन सर, एंड देयर शुड नॉट बी नो यूज ऑफ कॉमा का यूज नहीं करना आपको सैल्यूटेशन लिखने के बाद। एंड आफ्टर दैट सैल्यूटेशन लिखने के बाद बॉडी ऑफ द लेटर इज रिटन। While writing a body of the letter, there are some important points which we should keep in our view. कुछ महत्वपूर्ण बातें होती हैं, कुछ important views हैं जो हमें अपने दिमाग में रखनी है। First of all, while writing a body of the body of the letter must be clear and brief. जो लेटर का बॉडी होता है, ये पार्ट बहुत ही ब्रीफ होना चाहिए। जैसे आप में से कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, फॉर्मेट में तो गलती कर देते हैं ऊपर से लिखने में, जहाँ रिसीवर स्टेटस लिखना है वहाँ सेंडर स्टेटस लिख देते हैं, सेंडर स्टेटस लिखने में रिसीवर का लिख देते हैं आप लोग, और बॉडी ऑफ द लेटर में आप कम से कम 20 to 25 लाइन्स लिख देते हैं। दिस इज रॉन्ग मेथड डियर स्टूडेंट्स। द बॉडी ऑफ द लेटर मस्ट बी ब्रीफ एंड क्लियर। क्लियरिटी के साथ जो कुछ आप लिख रहे हैं वो सब बातें लिखनी चाहिए। एंड अदर थिंग इज दैट द लैंग्वेज इन द बॉडी ऑफ द लेटर मस्ट बी पोलाइट। जो लैंग्वेज हम यूज कर रहे हैं वो पोलाइट लैंग्वेज होनी चाहिए, इवन व्हाइल राइटिंग अ कंप्लेंट लेटर। एज इन द प्रीवियस वीडियो आई टोल्ड यू, जैसे ही हम कंप्लेंट लेटर भी यदि लिख रहे हैं तो लिखने की जो हमारी लैंग्वेज होती है बॉडी में वो बहुत पोलाइट होनी चाहिए। एंड थर्ड वन इज देयर शुड नॉट बी नो रिपीटिशन ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस को रिपीट नहीं करना है कि एक बार जो बात लिख दी दोबारा फिर वही बात आप लिख रहे हैं। सो टॉकिंग अबाउट द बॉडी ऑफ द लेटर इन दिस एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल जो हमने लिया है इसकी बॉडी ऑफ द लेटर आपको सिखा रहा हूँ। I am a student of 10th class, मैं 10th क्लास का एक स्टूडेंट हूँ, and I want to pursue a course in visual communication। मैं विजुअल कम्युनिकेशन में एक कोर्स करना चाहता हूँ। I am interested in pursuing a course in visual communication after my final exams this month। जब मेरे फाइनल एग्जाम हो जाएंगे इस महीने, क्योंकि मैं 10th क्लास के स्टूडेंट हूँ, उसके बाद मैं विजुअल कम्युनिकेशन में एक कोर्स करना चाहता हूँ। I have seen your advertisement, मैंने आपका एक एडवर्टाइजमेंट देखा है रिगार्डिंग डिफरेंट कोर्सेज इन मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन से रिगार्डेड जितने भी कोर्सेज हैं, जिसमें विजुअल कम्युनिकेशन का कोर्स भी शामिल है, ये मैंने ऐड आपका देखा है
आई ऑल्सो वॉन्ट टू ज्वाइन योर इंस्टीट्यूट, मैं भी आपके इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहता हूँ, आपके इंस्टीट्यूट से जुड़ना चाहता हूँ। काइंडली प्रोवाइड मी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस, आप थोड़ा सा फॉलोइंग इन्फॉर्मेशंस जो हैं जिन्हें मैं नीचे मेंशन कर रहा हूँ उन्हें थोड़ा सा मुझे प्रोवाइड करने का कष्ट करेंगे। अबाउट द कोर्स इन विजुअल कम्युनिकेशन, जो इन्फॉर्मेशंस विजुअल कोर्स से संबंधित हैं। एलिजिबिलिटी फॉर द कोर्स, इस कोर्स को करने के लिए एलिजिबिलिटी क्या है, कौन कर सकते हैं इस कोर्स को। ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स, ड्यूरेशन मीन्स टाइम पीरियड ऑफ द कोर्स, इस कोर्स का टाइम पीरियड कितना है। फीस स्ट्रक्चर, फीस कितनी बढ़ेगी। मोड ऑफ अप्लाई, किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और इनके अलावा एनी अदर रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जितनी बातें मैंने मेंशन की हैं इनके अलावा और भी कोई इंफॉर्मेशन है जो कि रिलेटेड टू द कोर्स विजुअल कम्युनिकेशन, तो प्लीज काइंडली प्रोवाइड मी द इंफॉर्मेशन एज अर्ली एज पॉसिबल, जितनी जल्दी हो सके मुझे प्लीज ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा दीजिए, क्योंकि सो दैट आई कैन डिसाइड फर्दर, ताकि मैं आगे भी कुछ डिसाइड कर सकूं। ये बॉडी ऑफ द लेटर है, बहुत ही ब्रीफ लिखना है, क्लैरिटी के साथ लिखना है, सेंटेंसेस को आपने रिपीट नहीं करना है और पोलाइट लैंग्वेज में अपनी बॉडी ऑफ द लेटर लिखना है। आफ्टर दैट थैंकिंग यू, कम्प्लीमेंट्री क्लोज करना है, तो थैंकिंग यू लिखा जाता है लेफ्ट हैंड कॉर्नर से ही आपने लिखना है। हियर स्टैंड्स, यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा थैंकिंग यू क्यों लिखा जाता है। जब हम किसी को बोलते हैं ओरली तो हम थैंकिंग यू नहीं बोलते, थैंक यू बोलते हैं, पर रिटर्न में हम लिख रहे हैं थैंकिंग यू, वाई, व्हाट्स द रीजन। थैंक यू क्यों नहीं लिखा आप लोगों ने। थैंक यू लिखने का मतलब दैट्स इट, हो गया, अब आगे कुछ नहीं लिखना है हमें। ठीक, थैंक यू मीन्स धन्यवाद, हो गया। थैंकिंग यू आपका धन्यवाद देते हुए, और अब आएगा कम्प्लीमेंट्री क्लोज में फिर योर्स फेथफुली या योर्स सिंसियरली भी आपको लिखना होगा थैंकिंग यू लिखने के बाद कि आपका धन्यवाद देते हुए योर्स फेथफुली। योर्स फेथफुली को आप थोड़ा सा स्पेस देकर बाय गिविंग अ स्लाइट स्पेस आप लिखेंगे योर्स फेथफुली, एंड देन नेम आपको लिखना है जो कि पर्सन में मेंशन किया हुआ है, राजन वर्मा, रजनी वर्मा दोनों ही मेंशन किए हुए थे, आप क्योंकि लिखते हैं रजनी वर्मा। This was the format of the letter of inquiry. Dear students, I hope that you understand very clearly. Please do watch the video, and if you feel any difficulty anywhere, you may ask me without any hesitation. You will be sent PDF also, and in PDF I'll send some other letters related to letters of inquiry. Please practice at your home. If you feel any difficulty, you may ask me. Thank you. Take care of you.